Yeah, welcome again to Deep Water, the continuation or the final part of the chapter English. Chapter number 3, Deep Water by William O. Douglas. So, in my last video, I have explained you the incident. I narrated the incident, what had taken place in Douglas' life. After that, how he has come over. Right now, we are going to discuss that one. Only his heart and the pounding in his head said that he was still alive. Dougal told him that twice or thrice he tried to overcome with the water, but still he was failed to save his life. At the third time also, when he failed, so he just reached to the bottom. He again jumped with but his jump went in vain. He was still underwater. The sharp terror took him more tightly in his clutches. The fight for the survival is lost. जो फाइट थी उसकी, वो मतलब क्या हो चुकी थी, उसके सर्वाइवल की, उसके ज़िंदा रहने की, वो ख़त्म हो चुकी थी. डॉगल डिस्क्राइब हाउ फियर पैरालाइज्ड हिम. हिज आर्म्स इन द legs stopped moving. He trembled with fright. He tried to call for his mother, but nothing happened. Suddenly, Dougal found himself coming out of the water. He sucked for air. ये हो चुका. He sucked for air and got water. Then he started going down for the third time. Then all his efforts ceased, and by his body went limp. A blankness took over his brain, which wiped out tear and terror. Everything went quiet and peaceful. Dougal felt as if he was wrapped in his mother's arm. Then he fell unconscious. The next thing he remembers was lying on his stomach beside the pool, vomiting. The terror of the dogger destroyed the social life of his own. He tried to overcome of it. So, what was the next consequences by which the doggle was going to take? Dougal couldn't eat that night. He was weak and trembled. He shook and tried on his bed. He never went back to the pool. वो वापस कभी भी पूल पर नहीं जाते हैं. He feared water and avoided it whenever he could. मतलब वो हमेशा पानी को इग्नोर करते रहते हैं कि जहाँ भी पानी वाली जगह होती वो नहीं जाते हैं. Whatever be the picnic place or the enjoyment place या स्विमिंग के लिए, बोटिंग के लिए, फ़िशिंग के लिए, वो कोई सी भी जगह पर नहीं जाते हैं. इस टाइप से वो उन्होंने अपने आप को इन सारी एक्टिविटीज़ से दूर रख लिया है. अब जो डॉगल हैं वो फाइनली डॉगल डिसाइडेड टू गेट अ स्विमर इंस्ट्रक्टर. वो क्या करेंगे, एक इंस्ट्रक्टर हायर करेंगे जो कि क्या करेगा, उनको पर्टिकुलरली सिर्फ और सिर्फ उनको ही प्रैक्टिस देगा. वीक में 5 डेज़ प्रैक्टिस देगा और 1 घंटे तक के रोज़, मतलब डेली बेसिस पे 1 आवर ईच डे, एंड वीक के बेसिस पे टोटल 5 days in a week. The instructor put a belt with a rope around डॉगल, और डॉगल के वेस्ट पे, उसकी कमर पे एक बेल्ट बांध देते हैं. उसके आसपास में क्या लगी रहती है, रस्सी लगी रहती है पुली से, है ना. दिस रोप वेंट थ्रू अ पुली. द इंस्ट्रक्टर हेल्ड ऑन टू द अदर एंड ऑफ द रोप. दूसरी तरफ से इंस्ट्रक्टर के हाथ में वो रस्सियाँ रहती है. Each time the instructor relaxed his hold on the rope and Dougal went under. Some of the old terror returned and froze his leg. It took him 3 months to get over his fear. तो उसे ऐसा करते करते
3 महीने लग जाते हैं कि धीरे धीरे वो बेल्ट रस्सी छोड़ता है और उनको पानी के अंदर उतरने देता है। फिर उसको मतलब टाइटली रोक देता है ताकि जो उनका डर है वो धीरे धीरे जाता रहे। और ऐसा करते करते उनको ये प्रैक्टिस करते 3 मंथ्स लग गए उस फियर से ऊपर उभरने में, उनको उस डर से उभरने में। देन द इंस्ट्रक्टर टॉट हिम टू ब्रीथ अंडर द वाइल स्विमिंग अंडर द पूल, मतलब कैसे वो सांस ले सकते हैं स्विम करते करते। नेक्स्ट ही टॉट हिम हाउ टू मूव हिज लेग, और पाँव कैसे चलाना है। Thus piece by piece, bit by bit, he built a swimmer out of the doggle. Doggle wills to live grew in intensity. After the training was finished, Doggle wondered if he would be terrorized sickened when he would be alone in the pool. और उसे फिर से लगता है अगर मैं जब अकेले रहूँगा तब मैं अपने आप को टेस्ट करता हूँ। सो ही वेंट, और इसके बाद में वो पूल में मतलब वापस से रिटर्न होता है अकेले, और उस वक्त वो उस डर का सामना खुद करता है। एट दैट टाइम ही वॉज नॉट अफ्रेड। डॉगल वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, अभी भी उसे अपने आप पे पूरा कॉन्फिडेंस नहीं आया है, तो वो अपने आप को टेस्ट करने के लिए कहाँ जाता है। न्यू हैम्पशायर नाम की एक प्लेस है, वहाँ पे एक लेक है। न्यू हैम्पशायर नाम की एक प्लेस है जहाँ पे एक लेक है, उस लेक का नाम है लेक वेंटवर्थ। लेक वेंटवर्थ में जा कर के वो कम से कम 2 माइल्स अक्रॉस द लेक वो वहाँ पे तैरता है। When Doggle was in the middle of the lake, जब वो बीच में पहुँचता है लेक के, he put his face under and was nothing but bottomless water, और जब वो अपना मुंह अंदर डालता है पानी में तो उसे गहराई ही सिर्फ गहराई दिखती है, मतलब ऐसा दिखता ही नहीं कि कहाँ इसका बॉटम है ना, मतलब उसको बॉटम तो नज़र ही नहीं आता है उस लेक का, मतलब वो लेक इतना गहरा होता है। The old sensation came back to haunted him, but this time Doggle was strong. He swam on, went, yet he had some residual doubt. अभी भी उसके मन में कुछ डाउट बचे हुए थे। At his first opportunity he veers to the warm lake, और फिर वो वहाँ तक के तैरते तैरते वार्म लेक में, went to the warm lake मतलब वहाँ तक चला जाता है। और उसके बाद में ही वॉज थ्रिल्ड विद द जॉय, और वो फिर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है कि अरे मैं इतनी दूर आ गया, मैं अपने डर से जीत गया हूँ। ही कॉन्कर्ड हिज फियर ऑफ वाटर। द एक्सपीरियंस हैड ए डीप मीनिंग फॉर हिम, और ये जो एक्सपीरियंस था उसके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता था। और फिर वो उसने एक के बाद एक जो है अपने आप को उसने प्रिपेयर करता रहा, स्विमिंग करता रहा। यहाँ ट्रिग्स आइलैंड के बारे में भी बताया है। वंस ही ड्राइव्ड ऑफ डॉक एट ट्रिग्स आइलैंड एंड स्वैम 2 माइल अक्रॉस द लेक। वही लेक है यहाँ पे, है ना, ट्रिग्स आइलैंड पर जो था वो। सो ही एक्सप्लेन दैट द डेथ वॉज पीसफुल, बट जो उसका जो एक्सपीरियंस था वो क्या बता रहा है कि जो डेथ होती है वो बहुत ही काम होती है, बहुत ही शांत होती है, बहुत पीसफुल होती है। बट इट वॉज द फियर ऑफ द डेथ दैट क्रिपल्ड अ पर्सन, जो डर रहता है डेथ से हमारा, क्योंकि हम उसे जानते तो हैं ही नहीं, है ना, वो हमें क्या कर देता है, कैप्टिव बना देता है, हमें क्रिपल्ड कर देता है। क्रिपल्ड अ पर्सन। हियर ही कोट्स, वो वहाँ पे एक कोटेशन देता है। क्या कोटेशन है कि कोटेशन किसका है, प्रेसिडेंट रूजवेल्ट का कोटेशन है ये, जो कि उनके फ्रेंड थे। ऑल वी हैव टू फियर, है ना, ऑल वी हैव टू फियर, हमें उससे डरना चाहिए। किससे डरना चाहिए, जो डर है, जो चीज़ हमें डराती है, हमें उस डर से डरना चाहिए कि कोई भी चीज़ हमें डरा नहीं पाए। मतलब हम ही वो पर्सन होते हैं जो हम डर को अपने ऊपर हावी होने देना चाहते हैं, इसलिए हमें कभी भी इस टाइप के फियर को अपने माइंड में जगह नहीं देनी चाहिए। ये वो उनका कोटेशन था। बिकॉज ही हैड एक्सपीरियंस डेथ एंड द टेरर दैट इट कुड प्रोड्यूस, ही विल टू लिव सम हाउ grew in intensity. So this was the chapter how he come over the phobia of the water, how he become a good swimmer at the end and conquered over his fear of water. तो इस टाइप से वो कैसे जीत जाते हैं, फाइनली ही वॉज एबल टू कॉन्कर हिज फियर ऑफ वाटर. So I hope the chapter is clear to you. So once go through the text, if some query will be there, please write in the comment box. Till then, thank you.